Student, welcome you all. So how are you all? Hope you all are very great. So today I am going to start a very last chapter of the syllabus term second from the books Footprints Without Feet, which is titled as Holy. So this is the part 1 of this particular chapter. So, as the title says, it's Bholi, it means we are going to read who someone is very simple, very innocent, right? So, let's start. Okay, so let's start with this para that is in gray box. So, Bholi, from her very childhood, Bholi was neglected at home. So, from this line, we just understand the things that Bholi is a girl, and when she was a child, so she was neglected by anyone, by everyone at her home. So, why did her teacher take special interest in her? So, still, their teacher took very special interest in her. Why? What was the reason behind it? So, did Bholi measure up to her teachers' expectations? क्या भोली जो है वो अपने टीचर्स के expectations को fulfill कर पाती है या नहीं? We will see in this chapter. So, let's begin with the very first paragraph of this chapter. So, her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. So, here, whose Bholi is here, his real name is सुलेखा एंड इन हर चाइल्डहुड एवरीवन मतलब हर कोई उसे क्या बुलाता था उसे भोली बुलाता था मीन्स ही इज famous for this name that is Bholi because of her simpleton. So simpleton means foolish person, right? Of the foolish attitude. That's why उसको सब भोली कहते थे. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlar. So Nambardar, it's a official this word. So Nambardar is an official who collects revenue, right? So Nambardar एक person थे that is रामलाल. रामलाल की fourth daughter जो है वो कौन है? Sulekha, that is Bholi. When she was 10 months old, she had fallen off the cot. So here the cot is a bed. Cot को क्या कहते हैं? Bed. On her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. So क्या हुआ when she was means when Bholi was 10 months old, so she fallen from of the bed, अपने हेड के थ्रू गिरी थी तो क्या हो गया था देयर इज सम पार्ट ऑन हर हेड जो क्या हो गया डैमेज हो गया था दैट इज वाई उनका ब्रेन सिस्टम कुछ डैमेज था सो मे बी ये रीज़न था उनके फुलिश नेचर का सो दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम बैकवर्ड मीन्स स्लो लर्नर सो दैट इज द मेन रीजन शी इज़ अ वेरी स्लो लर्नर child and came to be known as Bholi, the simpleton. So that is the main reason कि उनको भोली नाम से जाना जाने लगा. At birth, the child was very fair and pretty. So, at the birth time, she was very fair and she was very pretty girl. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. So, जब वो 2 years की हुई तो उनको एक smallpox is a disease. उन्हें हुआ and only the eyes were saved but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks means जो skin marks होते हैं जो स्मॉल पॉक्स नॉर्मली छोड़ जाते हैं सो मीन्स एक्सेप्ट द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज सफर्ड विद दिस smallpox or with the poke marks. So little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak she stammered. So देखो पहले तो 5 साल तक जो सुलेखा थी वो she couldn't speak a single word and after the 5 years she started speak some words but whenever she speak she stammered मतलब हकलाती थी वो stammered means fumbled for words यानी fumble करती थी अपने words में. The other children often made fun of her and mimicked her. Mimicked means to copy her or to imitate her. So obvious है ना बच्चे तो बच्चे होते हैं तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उस पर मिमिक करते थे. As a result, she talked very little. So
दैट इज वाई शी टॉक वेरी लिटिल, क्योंकि सब उसका मजाक बनाते थे. रामलाल had 7 children, their 3 sons and 4 daughters. So रामलाल के 7 children थे, जिसमें से 3 उसके बेटे थे और 4 daughters थे. तो that is why beginning of the story ऐसा कहा गया कि she was the 4th daughter, मतलब last daughter थी, 4 daughters है ना. एंड द यंगेस्ट देम वॉज भोली. सबसे छोटी कौन थी? भोली ही उनमें से सबसे छोटी थी. इट वॉज अ प्रॉस्पीरियस फैमिली. प्रॉस्पीरियस मतलब डूइंग वेल, वेल सेटल्ड फैमिली थी. फार्मर्स जो उसके फादर थे वो वेल सेटल्ड थे. हाउसहोल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी. प्लेंटी मीन्स लॉट्स ऑफ टू ईट एंड ड्रिंक. उनके घर में बहुत कुछ खाने और पीने को था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. केवल भोली को छोड़ के अदर चिल्ड्रन वर वेरी हेल्दी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. The son had been sent to the city to study in school and later in college. जो सन थे रामलाल के, उनको तो सिटी में स्टडीज के लिए भेज दिया गया था और बाद में कॉलेजेस के लिए. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. So जो उनकी elder daughter थी, that is Radha, वो already married हो चुकी थी, मतलब उनकी शादी हो गई थी. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, मतलब मंगला जो थी उनकी भी शादी ऑलमोस्ट सेटल हो गई थी और वो भी पूरी हो चुकी थी. रामलाल would think of the third Champa. अब now the third child, that is means the third girl child, that is Champa. रामलाल अब उनके बारे में सोच रहे थे कि इनको भी अब इनकी भी शादी करवाएंगे. So they were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. So they all were, means like Radha, Mangla and Champa. 3 of them were very good looking, very healthy girls. तो उनकी शादीज में मतलब उनके मैरिज में एज सच कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ी रामलाल को. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. इट्स ऑब्वियस भोली इज नॉट लाइक दैम, सो दैट इज वाई रामलाल वॉज वेरी कंसर्न, वेरी वरीड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस, बिकॉज शी हैड नथिंग. इवन वो एक तो सुंदर भी नहीं दिखती थी और वो इंटेलिजेंस भी नहीं थी, मतलब वो स्टैमर करती थी, सिंपलटन उसका नेचर था. तो दैट इज वाई रामलाल थॉट कि इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड her bridegroom. So Bholi was 7 years old when Mangla was married. जब मंगला की शादी हुई, मंगला कौन थी? उनकी सेकंड चाइल्ड, रामलाल सेकंड डॉटर. तब भोली 7 years old थी. The same year a primary school for girls was opened in their village. तो उसी ईयर पे गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया. सो द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. सो ऑब्वियस है कोई चीफ गेस्ट वगैरह आते थे, तो तहसीलदार साहिब थे. So he came for to cut the ribbon and for the opening ceremony. So he said to Ramlal, as a revenue official, means Ramlal जो आप एक revenue official है, you are the representative of the government in the village. यानी वही गवर्नमेंट के इधर रिप्रेजेंटेटिव बनेगा गवर्नमेंट विलेज में, सॉरी विलेज में. एंड मतलब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा विलेज में. एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ द विलेजर्स. एंड उसे कहा गया कि तुम्हें एक विलेजर्स पे एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा. यू मस्ट सेंड दैट नाइट. आई थिंक आई मिस्ड समथिंग, जस्ट वेट. So he said कि you must send. अब you must send के बाद I think okay, so you must send your daughters to village. ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है, sorry for that. So उसे रामलाल को कहा गया कि आपको क्या करना है कि तुम्हें अपनी डॉटर्स को कहाँ भेजना चाहिए? स्कूल भेजना चाहिए. Now that night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" सो जैसे ही रामलाल ने अपनी वाइफ से रिगार्डिंग बात की कि तहसीलदार सेड दिस थिंग्स टू मी कि मुझे अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजना चाहिए. सो हिज वाइफ सेड कि आर यू क्रेजी, अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा. सो दैट टाइम थॉट्स लाइक दिस कि अगर लड़कियों को स्कूल्स में भेज दिया जाता था तो नो वन गेट मैरिड विद दैम. सो बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. बट रामलाल के पास इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को ना माने. सो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू
what to do. Send Bholi to school, as it is there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. So उसकी वाइफ ने एक आइडिया दिया कि क्या ना हम भोली को भेज देते हैं, क्योंकि भोली की तो शादी होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज शी इज़ नॉट लुकिंग गुड एंड एज वेल एज शी हैज़ सम लैक ऑफ सेंस. तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. वी send the Bholi to the school. Let the teacher at school worry about her. और उसके बारे में टीचर्स को फिर चिंता करने दो. तो the next day, रामलाल caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to the school." रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला चलो मैं तुमको कहाँ लेके चलता हूँ, स्कूल लेके चलता हूँ. भोली वॉज फ्राइटन, भोली वॉज वेरी फ्राइटन दैट टाइम. उसको डर गया भाई ऐसा क्या हो रहा है. शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, बिकॉज सी कभी लड़कियों को भेजा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि भोली को नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है जहाँ मुझे ले जाया जा रहा है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. सो उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनके घर में एक काउ थी लक्ष्मी नाम की, जिसको क्या कर दिया था, घर से बाहर लेके जाया गया था, उसको बेच दिया गया था. सो शी वॉज अ चाइल्ड, मतलब भोली इज़ अ चाइल्ड. सो ऑफकोर्स उसके माइंड में यही आ रहा है कि आई एम वेरी बैड लुकिंग गर्ल एंड स्टैमर्ड ऑल्सो एंड नॉट सो गुड, सो मे बी मुझे भी ऐसा सोल्ड वगैरह ना किया जाए. न न न न नो 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 नो. शी शाउटेड इन टेरर. टेरर मीन्स बहुत आतंक हो गया था, उसको डर लग गई थी वो, और बोलती ना मुझे नहीं जाना. एंड पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. और वो बार बार अपने फादर्स की ग्रिप से हाथ छुड़ा रही थी कि मुझे नहीं जाना है. व्हाट्स द मैटर विद यू फूल. उसके फादर कहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें. रामलाल भी शाउट करते हैं आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर wear some decent clothes today or else what will the teacher and the other schoolgirls think of us when they see her. So Ramlal said to her wife कि इसको कुछ decent से clothes पहनाओ, right? और जिससे नहीं तो फिर जो अदर स्टूडेंट्स है, जो अदर टीचर्स है, वो क्या कहेंगी भोली को देखकर कि कैसे ले आए, तो इसको कुछ डिसेंट क्लोथ्स पहना दो. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. अब देखो भोली के लिए कभी देखो न्यू कपड़े तो बनाए नहीं गए, राइट. ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि भोली के लिए कुछ न्यू क्लोथ्स बनाए जाएं. सो द ओल्ड ड्रेस ऑफ अ सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर. सो जो भी ओल्ड ड्रेस उसके सिस्टर्स के होते थे वही उसको दे दिए जाते थे. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. और किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कपड़े कोई वॉश करे या अच्छे से तय करके रखे, प्रेस करे. नो बडी केयर्ड अबाउट इट. So, but today she was lucky to receive clean clothes which had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा. तो she was very happy कि उसको अभी एक न्यू ड्रेस मिल रही है जो चंपा के अब नहीं आती है. वो shrunk हो गई थी, तो बहुत सारे वॉशेस के बाद वो इतनी shrunk हो गई थी तो अच्छे से चंपा को नहीं आती, तो उसको एक क्लीन ड्रेस पहनने को मिल रहा था. शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. उसको अच्छे से बेथिंग हुई, उसको ऑयलिंग किया गया और अच्छे से उसको रेडी किया गया. ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम. सो नाउ शी गेट टू नो कि अब उसे अपने घर से एक बेटर जगह ले जाया जा रहा है. दैट्स वाई उसको इस तरीके से रेडी किया जा रहा है. So when they reached the school, the children were already in their classroom. अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचे तो चिल्ड्रन क्या थे, अपने क्लासरूम में ऑलरेडी थे. So रामलाल handed over his daughter to the headmistress. हेडमिस्ट्रेस जो लेडी हेडमिनिस्टर होती है उनको डॉटर को दिया, उनको हैंड ओवर किया. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज. अब वो बहुत डरी हुई थी, अब वो देख रही थी क्या हो रहा है, उसको छोड़ के अकेला चले गए थे उसके फादर. देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स. बहुत सारे रूम्स थे, सब लोग मैट्स पर, दरियों पर बैठे थे लड़कियां बहुत इधर उधर होकर. रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स. दे वर ऑल रीडिंग फ्रॉम द बुक्स और राइट कर रहे थे ऑन द स्लेट्स. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम्स. तो हेडमिनिस्टर भोली से बोली किसी भी क्लासरूम में जाकर तुम बैठ जाओ. सो दैट इज हाउ शी गॉन फॉर स्कूल. And let's see what happened next in this story. And स्कूल उसे पसंद आती भोली को या नहीं आती है और क्या होता है. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो विद दिस वी जस्ट कंप्लीट द पार्ट 1 of this chapter. So thank you for watching this video.